آداب عرض کرتا ہوں نوشاد منتظر. آداب عرض کرتا ہوں میں نوشاد منتظر. آج کی سیریز غزل کی کہانی میں جو غزل ہم لوگ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ غزل ہے دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں. اکبر الہ آبادی صاحب کی یہ مقبول غزل، اور اسی کے ہم لوگ فرسٹ پارٹ ریسائٹیشن پہ رہیں گے، سیکنڈ پارٹ اس کے ہم لوگ انٹرپریٹیشن پہ رہیں گے، جیسا کہ غزل کی کہانی سیریز میں ہم لوگ کرتے آئے ہیں. تو غزل شروع کروں اس سے پہلے یہ ضرور بتا دوں آپ کو کہ یوٹیوب پہ، انسٹاگرام اور فیس بک پہ میں نوشاد منتظر کے نام سے ہوں. پوڈ کاسٹ پہ یوٹیوب پوڈ کاسٹ، انسٹاگرام یوٹیوب پوڈ کاسٹ، اسپوٹیفائی، ایپل گانا پہ بھی نوشاد منتظر کے نام سے میں ہوں. اور نوشاد منتظر .com جو ویب سائٹ ہے اس پر سارا کنٹینٹ ایک ساتھ ہے، تو آپ اگر ایک نظر وہاں بھی ڈال دیں، یا آپ سے میری ملاقات فیس بک اور انسٹاگرام، یوٹیوب پہ بھی ہو جائے تو کہنے ہی کیا ہے شام کے. تو لیجیے شروع کرنے جا رہا ہوں میں. دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں، دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں. زندہ ہوں مگر زیست کی لذت نہیں باپ، ہر چند کی ہوں ہوش میں ہوشیار نہیں. اس خانہ ہستی سے گزر جاؤں گا بے لوث، اس خانہ ہستی سے گزر جاؤں گا بے لوث. سایہ ہوں فقط نقش بد دیوار میں، افسردہ ہوں عبرت سے دوا کی نہیں حاجت. افسردہ ہوں عبرت سے دوا کی نہیں حاجت. غم کا مجھے یہ ذوف ہے بیمار نہیں. وہ گل ہوں خزاں نے جسے برباد کیا ہے، الجھوں کسی دامن سے میں وہ خار نہیں. یا رب مجھے محفوظ رکھ اس بت کے ستم سے، میں اس کی عنایت کا طلبگار نہیں. یہ غزل جب اپنے فائنل ڈیسٹینیشن پہ پہنچتی ہے، انجام پہ پہنچتی ہے، تو اکبر الہ آبادی صاحب نے جس کیفیت میں یہ غزل لکھی ہوگی اس سے گزرنے کی کوشش کرتا ہوں. کیا چیزیں ان کے دماغ میں چل رہی ہوں گی، کیا کن کن چیزوں سے، کن کن حالاتوں سے وہ مایوس ہوں گے، یا کئی ایسی چیزیں جو دماغ میں آتی ہیں. اور کبھی اس پہ بھی بات کریں گے بیکاز اٹ ول لیڈ ٹو اندر فلاسافیکل کائنڈ آف تھنگ، تو وہ ایک دم الگ بات ہو جائے گی. تو اب میں سیدھے انٹرپریٹیشن والے پارٹ پہ چل رہا ہوں. اور ہاں، سب سے بہترین اس غزل کا جو شعر ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں، جو مجھے سب سے بہترین لگتا ہے، اور کئی وقتوں میں وہ شعر اس غزل کا بہترین ہی رہا ہے. دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں. تو یہی اس کا پہلا مصرع ہے اس غزل کا. تو یہیں سے کہ اسی کے انٹرپریٹیشن سے سٹارٹ کر رہے ہیں. دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں. طلبگار مینس ڈیزائرفل. میں دنیا میں ضرور ہوں لیکن آئی ایم ناٹ ہیونگ اینی ڈیزائر آف دا ورلڈلی تھنگس، جو بھی ہیں میٹریلسٹک تھنگس، میں ان کا طلبگار نہیں ہوں. جو بھی عیش و آرام کی چیزیں ہیں، جو بھی زندگی کی کو آسائش بناتی ہیں جو چیز، میں ان کا طلبگار نہیں ہوں. بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں. یہ دنیا، یہ بازار نما جو دنیا ہے، میں اس سے گزر ضرور رہا ہوں. میں زندہ ہوں اس وجہ سے اس دنیا سے گزر ضرور رہا ہوں، لیکن میں اس میں سے کہیں بھی کسی چیز کا خریدار میں نہیں. مطلب اٹ آلسو شوز دا ٹرانزیشن فیز فرام دا worldly attachments to the more spiritual connectivity. دنیاوی باتوں سے آخرت یا
मोर क्लोज टू गॉड वाली चीज़ों पे जो ट्रांजिशन फेज आया है, शायद वो भी एक शेर उस चीज़ को एक्सप्लेन कर देता है। जिंदा हूं मगर जीस्त की लज्जत नहीं बाकी। मैं जिंदा हूं मगर जीस्त की, जिंदगी की लज्जत बाकी नहीं है। बड़ी रूखी थकी हुई जिंदगी चल रही है। हर चंद की हूं होश में, होशियार नहीं हूं। मैं हर चंद होश में जरूर, मैं हर चंद होश में जरूर, हर चंद की हूं होश में, होशियार नहीं हूं। मगर दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इतना अवेयर नहीं हूं। दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इतना होशियार, अगर आप बोले मुझे, तो मैं उतना होशियार नहीं हूं। इस खानाए हस्ती से गुजर जाऊंगा बेलौस। इस खानाए हस्ती से, जो हाउस ऑफ लाइफ है, खानाए हस्ती है, हाउस ऑफ लाइफ जहाँ इतनी चहल पहल है, मतलब ये दुनिया, मैं इससे एक दिन एक रोज बेलौस गुजर जाऊंगा। बेलॉस मीन्स विदाउट एनी सेल्फ इंटरेस्ट। मुझमें अभी अब कोई सेल्फ इंटरेस्ट बचा नहीं है। और इसी बेलॉस पने के साथ, इसी बेलॉस एटीट्यूड के साथ, जिसमें कि मेरा कुछ नहीं बचा है और मैं सेल्फलेस जी रहा हूँ इस दुनिया में, इसी थॉट के साथ, इसी अप्रोच के साथ मैं इस दुनिया से गुजर जाऊंगा एक दिन। इस खानाए हस्ती से गुजर जाऊंगा बेलौस। साया हूं फकत, नक्श व दीवार नहीं। मैं साया हूं। मैं साया क्यों हूं? क्योंकि मैं एक जिंदा हस्ती हूं। मैं उस जिंदा हस्ती का एक साया हूं। मैं नक्श व दीवार नहीं हूं। मैं दीवार पे छपी हुई कोई तस्वीर नहीं हूं फकत, कि मेरा कोई वजूद ही ना हो। मैं एक इंसान हूं जिसका एक साया है, और इस वजह से मेरा एक वजूद, मेरी एग्जिस्टेंस अफसुर्दा हूं इबरत से, दवा की नहीं हाजत। मैं डिप्रेस इस चीज से हूं, मैं अफसुर्दा हूं, मैं डिप्रेस इस चीज से हूं, इस एग्जाम्पल से हूं जो दुनिया में दिया जा रहा है। वो एग्जाम्पल किसी भी तरह से देने लायक एग्जाम्पल्स में से नहीं है। मतलब यहाँ शायर का ये भी कहना है कि जो दुनिया में चीजें हो रही हैं, I do not keep myself connected to those things, और जो चीज़ें हो रही हैं मैं उनसे खुश नहीं हूँ, मैं उनसे अफसुर्दा हूँ, मैं उनसे डिप्रेस्ड हूँ। अफसुर्दा हूँ इबरत से, दवा की नहीं हाजत। और मुझे डिप्रेशन दुनिया में दी हुई जो गलत एग्जाम्पल्स हैं, मुझे दवा की हाजत नहीं है, मुझे दवा की ज़रूरत नहीं है, मुझे और कोई बीमारी नहीं है। इस दुनिया की अप्रोच सही कर दो, इस दुनिया के दिए जाने वाले एग्जाम्पल्स को सही कर दो, तबीयत मेरी अपने आप सही हो जाएगी। अफसुर्दा हूँ इबरत से, दवा की नहीं हाजत। गम का मुझे ये ज़ौफ़ है, बीमार नहीं। मैं इसी गम से कमज़ोर हूँ, मैं इसी गम से कमज़ोर हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ। मैं किसी भी तरह से बीमार नहीं हूँ। मुझे कमज़ोरी मेरे इन हालातों ने बनाई है, जो हालात इस दुनिया में बने हुए हैं गलत एग्जाम्पल्स को कोट करने के। वो गुल हूं खिज़ा ने जिसे बर्बाद किया है। मैं वो गुल हूं खिज़ा ने जिसे बर्बाद किया है। उलझूं किसी दामन से, मैं वो हार नहीं। मैं वो गार्डन रहा हुआ हूं जिसको ऑटम ने बर्बाद कर दिया, जिसको खिज़ा ने बर्बाद कर दिया, जो कि बर्बाद होना ही था। मतलब इसको मैं रोक नहीं सकता था, इस बर्बादी को। उलझूं किसी दामन से, मैं वो हार नहीं, क्योंकि मैं खुद वो शख्स नहीं हूं जो बर्बाद हो जाऊं। मैं खुद वो शख्स नहीं हूं जो कहीं बेवजह जाके उलझ जाऊं। मैं उलझूं किसी दामन से, मैं वो हार नहीं हूं, मैं वो कांटा नहीं हूं जो बेवजह, जो दामन उसको छूता हुआ गुजर जाता है खार कांटे पे, और कांटा उसी दामन में उलझ जाता है। मैं ऐसा खार नहीं हूँ, मैं ऐसा शख्स नहीं हूँ जो बेबात के उलझूं। मैं अगर बर्बाद हुआ हूँ तो मुझे मेरे हालातों ने बर्बाद करा है, जो होना ही था। जो इसकी पहली लाइन बोलती है ये गज़ल, इसका शेर, इस शेर की जो लाइन बोलती है, वो गुल हूँ खिज़ा ने जिसे बर्बाद किया है। मुझे हालातों ने बर्बाद किया है, and it was destined, I was destined to get devastated by the situations। या रब मुझे महफूज रख उस बुत के सितम से।
दो चीजें, दो इंटरप्रिटेशन इस शेर के, एक तो बुत जो आइडॉल है उसके तौर पे, और एक बुत यहाँ पे एक शख्स के तौर पे भी लिया गया है। या रब मुझे महफूज रख उस बुत के सितम से, मुझे उस शख्स के सितम से महफूज रख जो वो शख्स मुझ पे करे जा रहा है। मतलब कोई भी शख्स जो मेंटल टॉर्चर दे रहा हो, जो फिजिकल टॉर्चर दे रहा हो, मुझे उससे महफूज रख, मैं उसकी इनायत का तलबगार नहीं हूँ। अच्छा, ये टॉर्चर सिर्फ फिजिकल या मेंटल भी नहीं हो सकता, ये टॉर्चर हम लोग देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लव एज। कई बार दी गई मोहब्बत भी अपने आप में एक तरह का टॉर्चर हो जाती है। तो या रब मुझे महफूज रख उस बुत के सितम से, मैं उसकी इनायत का तलबगार नहीं, मैं उसकी इनायत का तलबगार नहीं हूँ। आई एम नॉट डिजायरफुल ऑफ हिज इनायत, ऑफ हिज काइंडनेस। या रब मुझे महफूज रख उस बुत के सितम से, मैं उसकी इनायत का तलबगार नहीं। वो गुल हूँ खिजा ने जिसे बर्बाद किया है, उलझूं किसी दामन से, मैं वो खार नहीं। दुनिया में हूं दुनिया का तलबगार नहीं, बाजार से गुजरा हूं खरीदार नहीं। तो लीजिए, ये गजल अपने अंजाम पे पहुंचती है और ये शाम अपने मुकाम पे पहुंचती है। अगली गजल सरा सीरीज में, जिसमें कि सिर्फ हम लोग रिसाइटेशन करते हैं, या तो उसके साथ हाजिर होता हूँ या गजल की कहानी के साथ हाजिर होता हूँ, या बेहतर रहा तो अपनी ही किसी गजल के साथ शामिल होता हूँ। अगर आप चाहते हैं मैं किसी भी गजल का रिसाइटेशन करूँ या उसका इंटरप्रिटेशन करूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। मुझ में अगर कोशिश ज़रूर करूँगा, अगर हिम्मत रही तो उसका जस्टिफाइड इंटरप्रिटेशन लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मैंने आपको अपनी गजलों में तो याद बेशक रखी रखा है। नौशाद मुंतज़िर।